صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سب جو لوگ اس میں شامل ہیں سب پہ آئی. نہ یہ مصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو ہم مرسی بننے دیں گے. میں میاں صاحب کا مقدمہ ہر جگہ لڑوں گی, آخری حد تک جاؤں گی. آج بھی میاں نواز شریف کو دل کا درد نہیں, اقتدار کا درد چین نہیں لینے دے رہا. اگر آپ کے رویے ٹھیک ہوئے تو پھر یہ چارٹر آف اکانومی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو سکتی ہے. پہلے پرائم منسٹر فل اپنا کانسیپٹ دیں, پھر ہم اس کو بات کریں گے پارٹی میں, پھر ان کو جواب. شہباز صاحب میثاق معیشت کی بات کی ہے, ان کی ایک اپنی رائے ہے. میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے, میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا. راج کماری آج اپنی ہی جماعت پہ خودکش حملہ کیا. نون لیگ 2 بیانیوں میں دھنس گئی ہے. آج کی گفتگو کے بعد اپنے چچا سے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ بھی طلب کر لینا چاہیے تھا. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادر مرزا. ناظرین, آج کی جو اہم ترین خبر ہے وہ یہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس اور دھواں دار پریس کانفرنس, اور اس میں سب سے اہم ترین سے کہ اگر ہم بات کریں تو وہ بات جو ان کے اپنے چچا اپوزیشن لیڈر پلس پارٹی پریزیڈنٹ فلور آف دا ہاؤس کر چکے, حکومت کو آفر کر چکے, میثاق معیشت کی بات کر چکے اور اس کو پھر انڈوز کیا اگلے ہی دن پیپلز پارٹی نے اور سابق صدر آصف علی زرداری نے. اس کو آج مریم صاحبہ نے کہا کہ ان کی اپنی رائے ہے, یعنی شہباز شریف صاحب کی اپنی رائے ہے. تو شہباز شریف صاحب یا وہ یہ بھول گئیں کہ وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور وہ چچا ہیں. بہرحال وہ اپنی جگہ, لیکن بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ یہ میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ امتحان ہے پی ایم ایل این کے اپنے لیے کہ وہ کس کی بات مانے گی, کس کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آخری بات حتمی رائے نواز شریف صاحب کی ہوتی ہے اور ظاہر ہے وہ ان کی صاحبزادی ہیں جو سب وہ پریس ٹاک کر رہی تھی. اس کے علاوہ جو دیگر حصے تھے بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے سوالات بھی اٹھائے, بہت ساری باتیں انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی کی, اس کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. لیکن جو اصل میں ایک اور امپورٹنٹ بات انہوں نے جو جے آئی ٹی تھی اس کو لے کر بھی کی اور دیگر چیزوں کو بھی لے کر کی, تو اس پہ ذرا اپنے پروگرام میں آج کے میں بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں, کیونکہ اب بات یہ بھی ہو گئی ہے کہ اپوزیشن اب یہ کہہ رہی ہے کہ جو میثاق معیشت کی ہم نے بات کی تھی اس کو جو حکومت ہے اس نے اس کو غلط معنی دیے اور کسی ڈیل کا کوشش کی کہ وہ کسی ڈیل کے زمرے میں آتے ہیں, تو اب ہم نہیں مانیں گے. خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اپوزیشن وزیر اعظم صاحب خود ہم سے رابطہ کریں تو ہم مانیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کروں گی, لیکن اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ٹویٹ وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنا چاہوں گی, جس میں اس پریس کانفرنس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں عوام سے, نواز شریف کے کروڑوں چاہنے والوں سے آپ سب سے مشورہ چاہتی ہوں کہ ان کے علاج کے لیے عدالتی ریلیف نہ ملنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھے کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عدالتوں کے بعد آپ کے جہاں سے آپ کی ضمانت بھی اب مسترد ہو گئی ہے, آپ کے پاس وہ کون سا فورم رہ جاتا ہے. پھر مجھے تھوڑا سا ماضی یاد آیا جب عدالتوں پر حملے ہوئے تھے, یا پھر کوئی ڈیل کی خواہش ہے یا جس طرح سے حکومت کہتی ہے. بہرحال اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جو سینئر پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں. رانا محمد افضل خان صاحب, فارمر منسٹر فار اسٹیٹ آف فائنینس اینڈ اکنامک افیئرز, پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کی رہنما. السلام علیکم عظمیٰ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈیفینس اور پولیٹیکل اینالسٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی شکریہ. اچھا رانا افضل صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی ہے. اوکے رانا صاحب, میں آج آپ سے پہلے تو ظاہر ہے وہ میثاق جو معیشت ہے جس کو مذاق معیشت کہا آج مریم صاحبہ نے, تو یہ جو خود اپنی ہی اپوزیشن لیڈر پارٹی پریزیڈنٹ کی رائے سے متصادم ہے. لیکن اس سے پہلے جس ٹویٹ کا میں نے یہاں پر حوالہ دیا, اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا فورم ہو سکتا ہے عدالتی ریلیف نہ ملنے کے بعد جس پہ عوام یا نواز شریف صاحب کے چاہنے والے ان کو رائے دیں. کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں سب سے بڑا فورم تو نیشنل اسمبلی ہے, اور اگر وہ نیشنل اسمبلی آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر کو استثناء دے سکتی ہے کرمنل کیسز سے اور دوسرے کیسز سے جس کے پیچھے وہ آج بھی کھڑے ہیں, تو نیشنل اسمبلی کا جو فورم ہے وہ 2/3 اکثریت سے کوئی بھی قانون پاس کر سکتا ہے.
आई डोंट नो, ये मैं अपनी सोच से कह रहा हूँ, ये मैं पार्टी की सोच की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इसको इस तनाज़ुर में ना लें। नहीं सर, लेकिन क्या कानून पास कर सकता है 2/3 अक्सरियत से कि मतलब नवाज शरीफ साहब को या कभी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले को या अदालती जो फैसला है उन अहकामात को रद्द कर दे? मतलब किस किस्म के कानून की सर आप बात करें? मैं थोड़ा सा अगर आप प्लीज़ तफसील बताएं। देखिए, इस मुल्क में 70 साल में किसी को इज्जत नहीं मिली। जिसने एटम बम बनाया वो फुटपाथों पे बैठा है, उसको स्मगलर बना दिया गया। किन जहाज़ों पे वो स्मगलिंग करता रहा वो एक अलग बात है। 17-18 वजीर आजम को जलील कर दिया गया। जो डिक्टेटर यहाँ आए उनको आज भी लोग गाली देते हैं। जजेस के बारे में भी इख्तलाफात हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई अगर हम अपने लीडर्स को, जिनको अवाम इलेक्ट करके लेके आती है, उनको कोई इज्जत का कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर ये मुल्क एक बेइज्जत मुल्क ही रहेगा, जो इमरान खान ने उसको मजीद बेइज्जत मुल्क बना दिया है। और उस बेइज्जती के ऊपर तुर्रा इम्तियाज ये कि आज आप भूखे नंगे भी हो गए हैं, आपकी उस तरह से भी कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई। तो मेरा ख्याल है कि ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन इसको आप इस तनाज़ुर में ना लें कि ये एक लीडर भी हैं, एक बाप की बेटी भी हैं, और उस बाप की बेटी हैं जिनके ज़ाती मुआलिज को ये हुकूमत जेल में नहीं जाने देती और अपने सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्टों के ज़रिए अदालतों में रिपोर्टें पेश करते हैं, जहां उन्होंने आज ये कहा कि उनको 3 हार्ट अटैक हुए और इन्होंने जाके वहां रिपोर्ट दी अदालत को कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई हार्ट अटैक का इशू नहीं है। 3 हार्ट अटैक नहीं, 3 हार्ट अटैक तो उनकी हिस्ट्री बताई, अल्लाह ना करे। उन्होंने कहा कि तीसरा हार्ट अटैक उनको जेल में हुआ, जी जिसका नहीं बताया गया। तो जनरल साहब, उस्मा मैं आपके पास आती हूँ, आपसे हुकूमत है, आपकी राय लूँगी, लेकिन जनरल साहब ये जो बात है, तो राना अफजल साहब से मैं ये चाह रही थी कि ज़रा पूछूं कि इसका किस तनाजुर में, क्योंकि क्या रिलीफ ऐसा मिल सकता है, कोई और फोरम आपको लगता है अदालतों के अलावा जो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे सके, और वो क्या हो सकता है मुमकिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए कानून एक है और होना चाहिए। इसी तरह अगर एक आदमी वजीर आज़म बन जाता है 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 6 दफ़ा भी बन जाए, तो उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल एक्ट करे, कोई ऐसा जुर्म करे या ऐसा उसके ऊपर इल्ज़ाम हो जो पाकिस्तान के क्रिमिनल कोड के तहत जिस पे ऊपर सजा दी जा सकती हो। और अगर वो सजा याफ्ता हो ही गया है तो वो एक सजा याफ्ता मुजरम है, वो फिर अब 3 दफ़ा का या 4 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर नहीं कहला सकता। अब उसकी सूरत हाल यही है कि आप एक रिलीफ मांगते हैं जो तमाम लोगों को, तमाम कैदियों को दिया जा सकता है, वो रिलीफ तो बिल्कुल मिलना चाहिए, उसमें कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने जुर्म तो किया, ठीक है, मुजरम हूं, सजा भी दे दी, लेकिन चूंकि मैं कभी वजीर आजम भी रहा हूं, लिहाजा मुझे अब कोई एक्स्ट्रा किस्म की उसमें रियायत मिलनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। उससे बहुत सारे कैदी उठ के आके तो आपको कहेंगे कि जी हमें भी बाहर भिजवा दीजिए फिर। तो ये मुश्किलात हैं। मेरा ख्याल है कानून को सबके लिए बराबर ही समझना चाहिए। ठीक है। और भी चीजें मरियम नवाज साहिबा ने उठाई थी, कुछ सवालात उठाए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उज़मा, ये बात तो अपनी जगह है, मरियम साहिबा ने अवाम की राय ली है, बहरहाल उनके जहन में क्या है ये वो जानती हैं। मिसाक़े मईशत जो गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि अपोजिशन का एक आइडिया था, पहले फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उसको फ्लोट किया, उसके बाद जरदारी साहब ने कहा, हुकूमत ने मान लिया कि हम तजावीज़ लेंगे, और अब वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी कहती है कि वज़ीर आज़म खुद राब्ता करें, और मरियम साहिबा कहती हैं कि वो मज़ाक़े मईशत होगा, मैं नहीं मानती। अब क्या करेंगे आप? जी, thank you so much Nadia for inviting me. Always a pleasure to come to your show. Thank you so much. देखिए, ये तो मिसाक के NRO था, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपने पहले शहबाज शरीफ के मुंह से सुना, फिर जरदारी साहब के मुंह से सुना कि पिछला मामला सारा रैप अप कर दें और अब आगे की तरफ देखें, तो फिर हम आपके साथ हाथ से और कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं। अब ये नहीं उनको पता कि ऊपर कौन बैठा है, ऊपर तो बैठा है इमरान खान, और इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर है जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और कभी जो है इमरान खान साहब ने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ना, आप जो भी उसको वर्ड कहें, लेकिन हुकूमत जो है वो मिसाक़े मईशत पे तैयार थी।
उसने एग्री किया था। नहीं, मैं कमेंट कर रही हूँ मरियम नवाज की स्टेटमेंट पे ना। उन्होंने वो उसको कहा कि ये बिल्कुल एक फेल्ड आइडिया है, यही उन्होंने कहा ना, मजाक मईशत। हाँ जी, वो इसलिए कहा क्योंकि आगे से जो रिएक्शन चाह रहे थे ये दोनों लीडरान, वो नहीं मिला इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा भी कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस वो तो चलता रहेगा, वो तो किसी हालत में नहीं रुकेगा। तो इनको पता लग गया। उसके बाद फिर ये धमकियों पे उतर आए, फिर इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं फैमिली में वो खुल के सामने वाजे होके आने शुरू हो गए। उधर बिलावल जो है गीदड़ भभकियां उसकी शुरू हो गई, क्योंकि साफ पैगाम मिल गया कि कोई पिछला हिसाब जो है, बल्कि अब तो कमीशन जो हमारा बना है उसमें तो पिछले 10 साल जो कर्जे लिए गए उसका भी हिसाब किताब अब बराबर करना पड़ेगा। पर भी सवाल उठाए हैं आज मरियम साहिबा ने, लेकिन उस पर मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करूंगी। राना अफजल साहब, ये जो मिसाक़ मईशत यानी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई, तो क्या मसला क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी से मुशावरत नहीं की थी? ये क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी तो नहीं हो सकती ना कि उनकी अपनी राय है। सर वो अपोजिशन लीडर है, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो उनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। और हम क्या समझे किसकी राय में वजन है और किसकी राय अहमियत की हामिल है? वाइस प्रेसिडेंट की, मरियम साहिबा की, या अपोजिशन लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट की? नादिया, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। 2015-16 में बजट के ऊपर इसहाक डार साहब ने, जब हम हुकूमत में थे, हमारी गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी तेजी से, उस वक्त ये ऑफर किया था कि मिसाक जमहूरियत होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़े बड़े अहदाफ के ऊपर हमारा एक नुक्ता निगाह एक हो जाए और उस पर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें और दुनिया हमें नेगेटिवली ना ले। उसके बाद उन्होंने अगले साल फिर किया। उसके बाद जब वो चले गए 2000, जब उनको हटा दिया गया, उसके बाद मैंने नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी मिसाके, तो हम अपनी हुकूमत के वक्त भी ये पेशकश करते थे। अब फिर अपोजिशन, जब हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, उसके बाद आने के बाद कि हम फिर भी बड़ा दिल किया और दोनों पार्टी के लीडरान ने इनको ऑफर किया, लेकिन ये हमारा मजाक उड़ाते रहे। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में ये ऑफर किया 3-4 दिन पहले, उसके बाद इनके मिनिस्टर्स के बयान निकाल के देख लें कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। इनका गवर्नर गया सरगोदा में, उसका बयान आप निकाल के देख लें। तो फिर हमें क्या जरूरत है? हमें कोई कुत्ते ने काटा है कि हम नहीं सर, लेकिन मरियम साहिबा कह रही हैं कि मैं तो इसको मजाक हमेशा समझती हूँ और ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी राय होगी, मैं नहीं मानती। तो शहबाज शरीफ साहब कौन है? पार्टी प्रेसिडेंट है सर, अपोजिशन लीडर है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कि वो कौन है ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, वो तो मैं कह रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप नहीं सर, सवाल कर रही हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने अपनी राय दी है और अब जब अगर हमें तो ये भी नहीं पता कि इन्होंने सीरियसली उसको कोई हमें जवाब दिया या नहीं दिया, और ये अगर उनका सीरियसली इस चीज की एक्सेप्टेंस आएगी तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इशू है। नून लीग पहले खुद इत्तेफाक करेगी और उसके बाद बात करेंगे। यानी अभी नून लीग में इत्तेफाक नहीं है इसके ऊपर? देखिए, अगर ऑल पार्टीज में बाकी पार्टियां कहती हैं कि कर देना चाहिए तो फिर हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो ये अंडर डिस्कशन, अभी तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। और जिन हालात में जिन हालात में मरियम नवाज साहबा ने ये स्टेटमेंट दी है, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इशू था वो और था। वो इशू था कि आज ये मुर्सी की तरह ये हुकूमत, फासिस्ट हुकूमत, उनके जाती मालिज को अंदर नहीं जाने दे रही, और फिर जो सरकारी डॉक्टर लिख के देते हैं कि उनका दिल बिल्कुल ठीक है, वही जाके अदालत में देते हैं और अदालत से जाके फैसला ले लेते हैं। तो ये इशू जो था साइड इशू था, मेन इशू कोई और था। चले, मेन इशू कोई और था, लेकिन 2 और मेन इशू भी थे जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए गए। एक तो मरियम साहिबा ने जो हाल ही में एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है हुकूमत ने, उस पर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए, और उसके साथ साथ वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ऑल्दो कि ये इट्स प्री मैच्योर, लेकिन बहरहाल एक्सटेंशन के हवाले से भी सवाल हुआ, उस पर भी मरियम साहिबा ने कुछ एतराज़ात उठाए, एतराज़ात ना उठाए लेकिन कोई रोले बात की। लेकिन क्या बात की, ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, आपसे शेयर करूँगी।
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने जो चार्टर ऑफ इकॉनमी था उसको कहा कि ये मजाक मैशत है, वो अपनी जगह, लेकिन जनरल साहब एक और उन्होंने बात की। उन्होंने जो हाल ही में जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया हुकूमत ने कि जो हमने बैरूनी कर्जे लिए हैं पिछले 10 सालों में, अब उनका हिसाब होगा 2008 से लेकर 2018 तक, उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए, जिसका भी हवाला उज़्मा साहिबा भी दे रही थी। वो ज़रा क्लिप सुन लीजिएगा मुख्तसर साहब, फिर जनरल साहब आपसे बात करूँगी। नवाज के लिए JIT बन सकती है, वो ISI और MI के सामने पेश हो सकती है। आपको पता है ना कि मैं जब JIT में गई थी उसमें बाकी तो सारे डमीज बैठे हुए थे। मेरे से ज्यादा सवाल ISI के रिटायर्ड अफसर ने किए, सब JIT को वो लीड कर रहे थे। आपने कहा कि आप तनकीद करती हैं फौज पे, मैंने कहा तनकीद की है फौज पे बतौर इदारा। आप समझते हैं कि फौज को या MI को या ISI को घसीटना चाहिए सियासत में? यहाँ मुझे जरा बैठ के इकोनॉमिक पॉलिसी बना के दिखाएं, आप दिखा देंगे? आपका काम है ये? आप मुझे ये कहेंगे कि आप मुझे क्यों घसीट रही हैं किसी ऐसी चीज में जो मेरा मैंडेट नहीं है या जिसमें मुझे कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? जब ये साबित हो गया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो आप इदारों को उसका हिस्सा क्यों बना रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनको पेटी पॉलिटिक्स में घसीटा जाए। वो नहीं चाहती कि कौमी सलामती के जो अदारे हैं उनको सियासत में घसीटा जाए। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ जो 12 रुकनी कमेटी जो कमीशन उन्होंने तश्कील दिया है उसमें भी ISI के नुमाइंदे भी हैं, उसमें MI के नुमाइंदे भी हैं, और उससे पहले जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील दी गई उसमें भी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इनपुट होगा, उनकी भी नुमाइंदगी। तो और फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। जनरल साहब, ये आपको लग रहा है कि इदारों को सियासत में घसीटा जा रहा है जो उनका मैंडेट नहीं है? पहली बात तो ये कि हुकूमत अगर कोई कमीशन बनाती है तो ये उसका इस्तेकाक है कि वो उसमें किसको शामिल करते हैं। उसमें ये अदारे अगर इनको शामिल किए जाए तो इनके पास इख्तियार नहीं कि ये उनको कहें कि जी हमें शामिल ना करें। जिस तरह डॉन लीग का हुआ तो उस वक्त भी उसमें शामिल किए गए ये अदारे, मॉडल टाउन का वाक़या हुआ तो उसमें भी यही अदारे थे जिनके रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल किए गए, कोई तकलीफ नहीं हुई उस वक्त किसी को। तो ये आज भी मेरा ख्याल है तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ये जो मईशत का मसला है वो आज आपकी सर्वाइवल का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। बहुत सारा पहले भी मईशत के मामले में मुझे याद है कि जनरल राहील शरीफ भी कहा करते थे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या जहां इलीगल मनी है वहां पे क्राइम भी मौजूद है, और टारगेट किलिंग वगैरह कराची में ये चीजें बहुत सारी लिंक्ड हैं इनसे। और अब आप देख लीजिए कि जो बहुत बड़े मसले आप FATF में भुगता रहे हैं वो आपकी इकॉनमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक खतरे की तलवार लटक रही है, और वो उसकी लिंकेज सारी पीछे क्राइम के साथ है। तो इन हालात में जहां सिक्योरिटी बिल्कुल रिलेटेड हो जाए इकोनॉमी से, या इकोनॉमी ही आपकी एक सिक्योरिटी का इशू बन जाए कि आपकी अपनी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल सारी डिपेंड ही उसी पे कर रही हो, तो उसमें आप इन अदारों के अगर लोगों को ले लेंगे तो मेरा ख्याल है आप एक होलसम किस्म की टीम बना रहे हैं जहां पे आप एक पूरा जायजा ले सकेंगे चीजों का, बजाय इसके कि आप इतराज करें। सर चले, ये बात तो मैंने आपकी बात समझ ली सर, लेकिन जो इंक्वायरी कमीशन है जो तहकीकात करेगा इन 10 सालों में कि जो बैरूनी कर्जे लिए वो कहाँ खर्च हुए और जिस मद में लिए वो उस पर खर्च हुए या नहीं हुए, उसमें क्या जरूरत है ISI और MI की? ये सवाल भी उठाया मरियम साहिबा ने। देखिए पहली बात उन्होंने वो JIT के बारे में कहा कि जी मुझे सबसे ज्यादा सवाल एक रिटायर्ड ISI के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने पूछे। बात यह है कि उसको पूछने नहीं चाहिए थे। क्या वो कमेटी का हिस्सा नहीं था, JIT का हिस्सा नहीं था? वो बाहर से आ गया था अचानक पूछने के लिए। JIT में जितने भी लोग थे सबको पूछने चाहिए थे, और अगर एक ने पूछे हैं तो उसमें बुराई क्या है? और फिर अगर आपका दामन साफ है तो आपको तंगी क्या है? उसमें कोई एतराज मेरा नहीं ख्याल कि ये एतराज बनता है। और फिर इसी तरह अगर आज कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हुकूमत समझती है कि उसको मदद की जरूरत है तो बिल्कुल लेनी चाहिए उसको। आप फ्लड आ जाता है तो आप कहते हैं जी फौज आ जाए, इलेक्शन कराने हैं फौज आ जाए, जलजला आ गया फौज आ जाए, फलां जगह दंगा फसाद हो गया फौज चली जाए, दहशतगर्दी होगी फौज चली। तो भाई इसमें आके ये आपको तकलीफ है? चले मैं ये भी क्या सिविल गवर्नमेंट की मदद के लिए नहीं है? सिविल गवर्नमेंट एक तहकीक करके एक नतीजे तक पहुंचना चाहती है, उसको मदद की जरूरत है अपने अदारों की। तो जहां आप 70 जगहों पे और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरा मुझे उज़्मा साहिबा से भी बात इस पे कर लेने दीजिएगा। उज़्मा साहिबा, क्या आपके पास IB का इदारा है, आपके पास FIA के इदारे हैं, ये सवाल उठाया जाता है, फिर हमेशा ये बात होती है कि हम फौज को तमाम चीज़ों में घसीटते हैं,
उनको सियासत में इन्वॉल्व करते हैं, वो तहकीकाती कमीशन जो इन दो जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं उनके जो अपना टेन्योर था उनकी तहकीकात करेगा, फिर कैसे उस पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लेबल्स को आप हटा पाएंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ाम से आप लोग निकल पाएंगे? तो ऐसे में आप इदारों को क्यों घसीट रहे जो सियासत में? नादिया, मुझे समझ नहीं आती कि आप को मरियम नवाज का नैरेटिव अभी तक क्यों नहीं समझ आया। क्या आप भूल गई हैं कि मरियम नवाज आर्किटेक्ट हैं डॉन लीक्स 1 और डॉन लीक्स 2 की, और इनके जो वालिद साहब जो हैं उन्होंने भी जो बॉम्बे अटैक्स में जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे कारी ज़र्ब लगाई थी, और किस तरीके से इन्होंने जो कलभूषण को इन्होंने जो एक प्रोटेक्शन दी। तो ये इनके तो ताने बाने कहीं और जाके मिलते हैं। अपने इदारों को बदनाम करना जो है ये इनके एक खसलत, इनकी जिबल्लत में शामिल है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इन्होंने को अटैक किया, तो लेकिन तो आप कोई इससे इज्जत, ये कोई तकरीर नहीं है अपने इदारों की। वो आपके अपने इल्जामात होंगे, लेकिन आप बेसिकली जो हमारे सिविलियन इदारे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी पे आप लोग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो ये काम कर सकें। हर दफा आपको क्यों जरूरत पड़ती है? नादिया, आपको मैं बताती चलूं कि हमारे पाकिस्तान में 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और ये बेहतरीन हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में माना जाता है। अगर यहाँ से हम इनके भी लोगों को अपने बाकी इदारों की मावनत के लिए हम साथ शामिल करते हैं, ताकि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हो वो उसमें जो सबूत जो लाने के लिए ये हेल्प कर सके हमें। ये डिसीजन इनकी नहीं होती, ये सिर्फ एक गैर जानबदार हर इदारे का कोई ना कोई बंदा। आपको पता है जो JIT जो सिंध में बनी थी, वो FIA ने हाथ जोड़े थे, उन्होंने कहा था कि खुदा के लिए सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमें एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती, हमें बाकी इदारों की मावनत चाहिए। आप इलेक्शंस तो करा नहीं सकते हैं, आपका फ्लड्स। अब जनरल साहब ने आपको पूरी लिस्ट बना दी किस तरीके से आप फौज को इन्वॉल्व करते हैं। हमें जो आप अपने इदारों को फिर मजबूत करें, बट एनीवेज अभी जो रेलेवेंट है इस कमीशन के लिए, अगर वो इन इदारों के पास है तो उसमें लेने में क्या मुज़ायक है। राना अफजल साहब, इनका दामन क्लीन है तो इनको प्रॉब्लम क्या है, जवाब देना। और राना साहब को एक आखिरी बात नादिया प्लीज मुझे कहने दें। राना साहब ने मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की नहीं पढ़ी, इनको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट कोई इस्तेहकाक जाती तौर पे किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे सकता। जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जब उन्होंने अपनी मनी ट्रेल और सारा अपनी प्रॉपर्टीज का हिसाब किताब देना है तो कोई इम्यूनिटी नहीं है। वही रूल ऑफ लॉ है जो एक आम पाकिस्तानी के लिए है, वरना आप सारे जो जेलों में बैठे हुए उन सारों को लंदन भेज दें, आप टिकट कटवाएं, ये इन्होंने जो पैसा जमा कराया है सारों को अपने साथ ले जाएं। एक सेकंड राना साहब, योर टेक सर। देखें, जो जनरल साहब ने बातें की और जो ये मोहतरमा फरमा रही हैं, हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि फ़ौज जो है हमारा वो अनकॉन्ट्रोवर्शियल रहे। उनको किसी कंट्रोवर्सी में, वो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं, उनके ऊपर कहीं उंगली ना उठे, उनके ऊपर किसी को शक ना हो और उनको पूरी कौम की सपोर्ट हो। जिस फ़ौज के पीछे कौम नहीं होती वो फ़ौज शिकस्त खा जाती है, और हमने ये मशरकी पाकिस्तान में देखा। ये हमारी फ़ौज जो है, ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम पालते हैं, इनको हम रखते हैं, ये हर मुल्क की ज़रूरत है। और ये सिविलियन लोग होते हैं जिनको हम फ़ौजी बनाते हैं, ये फ़ौजी नहीं होते जो हमारे ऊपर हुकूमत करने आते हैं। और ये एक मुलाजम इदारा है और इसका काम है बॉर्डरों की हिफाजत करना। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस रोल से मैं अपनी हुकूमत को भी ब्लेम करूँगा और सारी सियासी हुकूमतों को, और ये अयूब खान के वक़्त से हमारा बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ है, जहां हम आज आके खड़े हो गए हैं कि आज हमारी इंक्वायरियां भी इनके बगैर नहीं हो सकती। तो ये अगर आपने अपने मुल्क को ठीक करना है तो फौज के ऊपर, अब आपने पिछले इलेक्शन में फौज की ड्यूटी लगा दी, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कौम आज तकसीम है। आज बेशुमार लोग ऐसे हैं, बशमूल मेरे, जो समझते हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ। सर, फौज 2013 में भी थी, आप शायद राना साहब 2013 का भी इलेक्शन इसी तरह चोरी हुआ था। 2013 में 22 पार्टियों ने कहा था कि ये इलेक्शन होगा, तो 2013 का भी हुआ होगा। उससे 2013 में तो आप आए। मेरी अब बात मुझे आप कर लेने जी सर, जी सर। मैं किसी को गाली नहीं देने लगा। ये हम एक सफाई और एक प्योरिटी अपने मुल्क में लाना चाहते हैं। जब हुकूमतें कमजोर हो जाती हैं,
تو وہ اپنے آپ کو فوج کے کندھے پہ بٹھا کے دکھاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہیں. اور یہ اسی طرح کے جو یہ کمیشن بنا رہے ہیں اور جو ترقیاتی پروگرام بنا رہے ہیں. جنرل صاحب نے اب کہا کہ حکومت کا استحقاق ہے کہ اگر وہ کسی کمیٹی بناتے ہیں اور ہمیں شامل کرتے ہیں تو وہ ان کا استحقاق ہے. جنرل صاحب آپ مینول آف پاکستان ملٹری لا کے انڈر ہیں, آپ پاکستان کے آئین کے اندر ہیں, آپ کی بہت ساری سینسٹیو ذمہ داریاں ہیں. آپ کہیں کہ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے, ہم اس کے بعد کانٹروورشل ہو جائیں گے. آدھے لوگ ہمیں کہیں گے انہوں نے صحیح کیا, آدھے لوگ کہیں گے انہوں نے غلط کیا. ہم اس کانٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے. بڑا دل کریں, اپنے کام پہ واپس جائیں. یہ ہے پاکستان کا ایشو. یہ حکومت کمزور ہے, بجٹ ان سے نہیں بن رہا. یہ ہر سہارا لیں گے, یہ فوج سے بھی لیں گے, یہ نیوی سے بھی لیں گے, یہ ایئر فورس سے بھی لیں گے. جنرل صاحب معذرت ایک بریک لیں. جنرل صاحب ایک بریک لیں. بات یہ ہے, جنرل صاحب ایک بات بریک یہ ہے, اگر میں صرف ایک لفظ کہہ دوں کہ اگر میں یہ کہہ بھی دوں کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور حکومت پھر بھی یہ کہے کہ آپ حصہ بنے, تو پھر کیا حکومت کو اٹھا کے باہر مارا جائے؟ یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہوئی تھی. سپریم کورٹ کو پکڑ سکتے ہیں ہم کہ جی آپ نہ کریں. یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ جنرل صاحب مجھے ویسے میں وہ فیض آباد دھرنا یاد آ گیا جب یہ کہا تھا کہ ایکشن تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم ان کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. بٹ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں, اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جنرل پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جی جنرل صاحب آپ اپنی بات سر مکمل کر لیجئے گا. میں نے وہ حوالہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کا. دیکھیں یہ فیصلے حکومتوں کے ہیں, حکومتوں کو سوچنا چاہیے. اگر وہ مناسب سمجھیں کہ ان کو حصہ نہیں بنانا چاہیے ان کمیٹیوں کا تو نہ بنائیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ادارے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ آ کے پرائم منسٹر کو یہ کہے. وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے, یہ ہم اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے, یہ ہمیں اس کا پتہ نہیں. لیکن یہاں تو وہ ادارے کو چاہیے کہ خود آ کے کہے کہ جی ہمیں اس کمیٹی کا حصہ بنائیں, کیونکہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے اس چیز سے. سر میں جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, جب وہ فیض آباد دھرنے کا بھی میں بتاؤں, جب یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ پولیس استعمال کی ان کے خلاف. وہ دھرنے والے چلے پنجاب سے, وہاں سے لاہور سے, اور آپ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جا کے اسلام آباد میں اپنی ڈیمانڈ پیش کریں جو فلاں وزیر کو آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو کیا پنجاب گورنمنٹ نے ان کے اوپر گولی چلائی؟ کیوں نہیں پنجاب گورنمنٹ نے ان کو روکا؟ کیوں نہیں وہاں اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ان کو بلاک کیا؟ یہ کوئی باتیں کرنے کی. اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنے لوگوں پہ یہاں پہ گولیاں چلائیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ انکار کر دیں گے. یہ فوج کا ایک مسئلہ ہے بہت بڑا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پی این اے نے نظام مصطفیٰ کا چلایا قصہ, تو ہمارے پہلے دن 1-2 دن ہم نے وہاں پہ لوگ مارے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا جی ہم نبی کے نام پہ آئے ہیں ہمیں مارو, تو آپ کا جوان کہتا ہے کہ جی اس نبی کو یہ مانتا, اس کو میں بھی مانتا ہوں, میں کیوں اس پہ گولی ماروں؟ یہ اپنی جان اس نبی کے نام پہ دینے کے لیے آ گیا تو میں ہی اس کی جان دے لوں. ہمارے 4 بریگیڈیئر رات اس دن استعفیٰ دے گئے ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں, اور آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا ہوا. سر میں نے تو پھر یہ بھی دیکھا کہ خادم حسین رضوی کے ساتھ پھر بعد میں کیا ہوا. دیکھیں میں بتاتا ہوں خادم حسین رضوی کے ساتھ یہی وہ چیز ہے جو پنجاب گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی, پریمپشن, کہ آپ ان کا دھرنا بننے سے پہلے ان کو اٹھا لیں. جب دھرنا بن گیا وہاں پہ تو پھر آپ نے پولیس استعمال کر کے دیکھی, انہوں نے پولیس کے ساتھ لاٹھیوں سے مقابلہ کیا. اور آپ ججوں کا کام دیکھیں کہ وہ جج جس کو بھی نکال دیا گیا ہے وہ صدیقی صاحب, اس نے آپ کو پابند کر دیا کہ آپ اس کے اوپر طاقت سے استعمال نہیں کریں گے. آپ کو کہا گیا کہ جب آپ ویپن نہیں استعمال کر سکتے تو فوج کے پاس تو لاٹھیاں نہیں ہیں. اچھا میں ذرا رانا صاحب سے ان کا ٹیک لے لوں تو پھر میں عظمیٰ کی طرف بڑھوں گی کہ بجٹ کا کیا ہونے جا رہا ہے. جی رانا صاحب, میں آج ایک آپ کو ہائپوتھیٹیکل سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر آج عمران خان کی حکومت فوج کو کہے کہ کسی ملک پہ حملہ کر دو تو یہ کر دیں گے؟ یہ کہیں گے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب کمیٹی میں ڈالتے ہیں یہ بھاگے آ جاتے ہیں. چلیں خیر, تو برائی کیا ہے اس میں؟ چور پکڑنے میں اگر ہم بھی کو مدد کر سکتے ہیں تو برائی کیا ہے؟ جی آ رہی ہوں. اگر چوری نہیں کی تو آپ کو ڈر کوئی نہیں ہونا چاہیے نا جناب. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم اس ملک کی بقا کے لیے آج اس ملک کو معاشی دہشت گردی کا خطرہ ہے. معاشی دہشت گردی جو آپ لوگوں نے کی ہے اس کا خطرہ ہے, اور معاشی دہشت گردی لڑنے کے لیے ہم حاضر ہیں. پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ فوج ہر چیز میں دخل اندازی کرتی ہے. دیکھیں اگر حکومت جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں
अगर इनको शामिल करना चाहती है, दैट शोज कि ये सिविल सुप्रेमेसी है, हुकूमत इन में से किसी को भी किसी चले जी, वो हुकूमत अपना ये शौक पूरा कर ले, इंक्वायरी कमीशन बन जाए, बहुत अच्छी बात है। दहशतगर्दी But the question is, ये कहते हैं कि फौज जो है वो अपने दहशतगर्दी का मुकाबला दायरे में तो रह रही है सिविल हुकूमत, बुलाएं। और अगर अटैक भी करना है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आखिर में उसकी अच्छा, डिसीजन उस्मा, होगी, और चले, आर्मी प्राइम मिनिस्टर मैं के साथ इंक्वायरी खड़े कमीशन होंगे। से बाहर इन्होंने निकलती हूँ। कैसे ये सोच लिया कि जी फौज इनका हुक्म नहीं मानेगी प्राइम मिनिस्टर का, कैसे सोच लिया ये? राणा साहब कॉन्ट्रडिक्शंस करनी तरह बंद कर देना प्लीज। बीबी आपको नहीं समझ इन चीजों की, जाने दें। अरे भाई रहने दें, हमने भी दुनिया देखी है राणा साहब, अब आप फारिग हैं, आपका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। माशी दहशतगर्दी जब भी होगी तो फौज उसका उसमें काम करेगी। मैं उज़मा से सवाल करती हूँ। उज़मा, पार्लियामेंट में जो गूंज थी मिसाक़ मईशत की, अब अपोजिशन, बहरहाल आपको मईशत को फोकस करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जिन क्राइसिस का शिकार है उससे आपको निकालना है, और उसमें आपको इस अपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। मरीम साहबा ने जो भी कहा, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट में जो कहा गया उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अपोजिशन लीडर जो साबका थे खुशीशा साहब, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म खुद हमसे रब्ता करें चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए, तो फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने जब बात की और ऑफ़र की तो उसको हमारी कमज़ोरी समझा गया। अब वज़ीर आज़म साहब ये इनिशिएटिव लेंगे अपनी ईगो को बलाए ताक रखते हुए? नादिया देखें, ये बजट जो है ना इमरान खान का है, ना आपका है, ना मेरा है, ये पाकिस्तान की कौम का बजट है। आपका मुल्क इस बजट से चलना है, आपके इदारे इस बजट से चलने हैं। अगर इनको कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का थोड़ा सा भी ख्याल होता, जिस टैक्स पेयर के पैसे से ये असेंबलियों में इन ईवानों में बैठे हुए, तो ये बजट प्रपोजल्स में हमें कोई अच्छे अच्छे मशवरे देते। इन्होंने तो सवाए धमकियों के, गीदर भभकियों के, और इन्होंने जाके जो जाती उम्र में मुलाकात की थी दोनों शहजादा और शहजादी में, तो वही एक पॉइंट एजेंडा था, बजट नहीं हम पास होने देंगे। अरे भाई आप आके बैठे हैं, आप डिस्कस तो करें। बजट मैंने आपसे सवाल ये किया था उस्मा, बजट डिस्कस करने की उस्मा बजाय कहते हैं जी हमारा कोई हिसाब किताब ना ले, ये बजट हमने जो भी किया है पीछे वो उसको रहने दें, अब आगे की तरफ देखें। उस्मा मेरी ये बात कैसे सुन मुमकिन ले, है? उस्मा मेरी बात सुन ले, बजट ना मेरा है ना आपका है, बजट आवाम के लिए है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको पास करवाना। हुकूमत की जिम्मेदारी है अपनी बुर्दबारी से इजलास को आगे लेके चलना, सेशंस को चलाना। तो सवाल मैंने मुख्तसर से ये किया था कि अब अपोजिशन कह रही है कि जब हमने ऑफ़र किया आपने कमज़ोरी समझा, अब जो है वो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद रब्ता करें, तो क्या इमरान खान साहब मीसाक़ मईशत के लिए रब्ता करेंगे? क्योंकि जब मुल्क की बात आ जाती है तो वो ड्राइविंग सीट संभालने से भी गुरेज नहीं करते। जब गैर मुल्की सरबराहान जैसे यहाँ पर आते हैं, जो कि जिस तरह से कतर के अमीर आए हुए हैं, जिस तरह से सऊदी अमीर आए थे, तो फिर मेरा ख्याल है ये तो फिर भी अपने लोग हैं। देखिए नादिया, बात सारी ये है कि आपको प्रोडक्शन ऑर्डर जरदारी साहब का सारा ये इन सारों की प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं दिए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे शाह महमूद कुरैशी को आपने 12 दफा सुना है कि आए हमारे साथ मिल के पाकिस्तान की तरक्की में आप हिस्सा डालें। ये तो मैंने जरदारी साहब से भी सुना, ये मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी सुना, ये मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी सुना। अब वो कहते हैं कि वजीर आजम हमसे राब्ता करें मीसाक़ मईशत के लिए, करेंगे वजीर आजम नहीं करेंगे? ये जानना चाह रही हूँ आपसे। देखें, पहले तो ये अपना माइंड जो है ना ये क्लियर करें कि ये धमकियां देनी बंद करें, हम बजट नहीं पास होने दें। ये आके कहें कि जी हम मिलके बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? आउटसाइड द पार्लियामेंट आए, बैठे, सब बातचीत करें और उसके बाद हम आगे बढ़े, क्योंकि बजट जो है वो तो पास मैं वन लाइनर राणा साहब का ले लूं। राणा साहब नंबर्स तो हैं, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है। राणा साहब मुझे ये लगता है, इंशाल्लाह राणा साहब मुझे लगता है कि हुकूमत ये सोचे बैठी थी कि हुकूमत इस दफ़ा भी मैं ना मानू करेगी मीसाक़ मईशत पे, लेकिन हुकूमत ने इस दफ़ा ग्रीन सिग्नल दे दिया तो आप लोग बैक ऑफ हो गए। देखिए, हालात इतने खौफनाक हैं कि इनके पास और कोई चारा नहीं है और इनको एक मुनासिब बाइज़्ज़त तरीके से आना चाहिए। कभी ये कहते हैं हम NRO लेने के लिए आ रहे हैं, कभी ये कहते हैं हम अपने केसेस को छुड़वाने के लिए आ रहे हैं। आपने दुरुस्त कहा कि जब ये ड्राइविंग सीट पे आते हैं इनका मकसद होता है। आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपके प्रोग्राम कतर के अमीर को वेलकम करता हूं पाकिस्तान में। इस दौरे के नतीजे में अल्लाह करे कि अच्छे फैसले हों, लेकिन एक बहुत अहम फैसला भी आज हो जाना चाहिए कि पहले का तो हिसाब आपने देना है। 1-to-1 इनकी मुलाकात थी, उनसे इन्होंने पूछ लिया होगा कि वो जो कतरी खत था वो असली था कि जाली था। उनसे ये भी पूछ लिया होगा कि जो पाकिस्तान की नैब मुकदमा चला रही है
कतर के चलिए, एलएनजी ठीक है। डील के ऊपर, उसमें आप लोगों ने करप्शन तो नहीं कतरी की। खत तो छतरी बन गया भाई। ठीक है, मनी ट्रेल मैं खत्म करूंगी ऑपोजिशन के इस मुतालबे के साथ। मरियम नवाज साहिबा ने, में बात कर लेना, मैं आपकी बड़ी इज्जत सर मेरे पास टाइम खत्म हो गया। राना अफजल साहब बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका भी शुक्रिया, उज़मा साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुख्तसर सी बात यही है कि अब किसका बयानिया चलेगा, आया नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज का बयानिया चलेगा या शहबाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मरियम नवाज साहबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कोई सीनियर पार्लियामेंटेरियन उनके साथ दाएं बाएं बैठा हुआ नहीं था सिवाय परवेज़ रशीद साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, दीगर जो अयाज सादिक साहब, दीगर जो एक पूरी इनकी हिरार्की है वो उनके साथ क्यों नहीं थी, इस पर भी सवाल है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।